Thank you very much to IACI for giving me the opportunity to be a part of you. My subject for today is the safety in chemical industry in brief. It's very difficult क्योंकि the industry, whenever we look at it, it is the food industry, it is the pharmaceutical industry, it is the construction, electric field का ऊपर जो है, everywhere it is the specific on the energy or it is the part of those things which are in the output. जैसे pharmaceutical कहिए, food कहिए, it is basically like that. But the only exception is the chemical industry. In the chemical industry, the problem is that here, though whatever the accidents are there, that is because of the raw material itself carry it. So, in other places, it is not the raw materials, whether it is in construction or in the manufacturing, mechanical industry or automobile industry, it is not the raw material which, whenever there is a waste, whenever there is an intermediate stage, whenever there are the byproducts, they do not carry all these problems for the workmen. And secondly, those industry having the traditional type of accidents, traditional type of effect, traumatic. Whatever we have discussed today by the different our speakers, these are all in your tips, because if you go to the Googles, at present it is the Meta, everywhere the informations are there. Problems are coming because I will again come back to the chemical area. Some of the few things I want to experience from my experience of this 40 years. I like to share certain things. In many of the discussion, it has come the enforcement, whether Mr. Enforcement has I worked 16 years as an enforcing officer. The thing is that if I am being asked by the doctor, what is your problem? Whenever you enter to the doctor's cabin, he will ask you, what is your problem? Now you start घुमा फिरा के बहुत सारी चीज बोलते रहेंगे, लेकिन आपका क्या प्रॉब्लम है वो छोड़ के सब कुछ बोलने लग गए. So it is very difficult for the doctors to understand, except and otherwise go for the testing. तो हमारा इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम है, जो इंडस्ट्री बोलने नहीं चाहते हैं टू द एनफोर्सिंग एजेंसीज. मैं विनती कर रहा हूं टू माय ऑल फ्रेंड्स हु आर अवेलेबल हियर फ्रॉम द इंडस्ट्री, इसमें कुछ फायदा नहीं होता. इफ यू डोंट डिस्क्लोज द प्रॉब्लम टू द डॉक्टर, इसमें कोई फायदा नहीं होता. देयर इज नो बेनिफिट ऑन दिस, क्योंकि afterwards, whenever there is any problem in the factory as an accident or something like that, it will go to the court of the law, and there the motives are being observed. Many cases I myself has done when I was a port inspector in the port field, Dock Worker Safety Health Welfare Act. There are we have to prove that what was the motive, and then that the corporate has to give the answer that their motive was very free. आपने पॉलिसी आपका पास है, आपने डिस्प्ले नहीं किया. हमारा फैक्ट्री इंस्पेक्टर जाके आपको बताएंगे लगाइए, आपने सोचा कि ठीक है चले जाने से तो फिर देखेंगे.
इसमें कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट दीज आर द थिंग्स काउंट्स टू द कोर्ट ऑफ लॉ. मैं आप लोगों को, दोज हु आर अवेलेबल फ्रॉम द इंडस्ट्री, इन ए वेरी शॉर्ट आई वांट टू स्पीक दिस, बिकॉज chemical industry, this counts a lot, because it is not the traumatic accident which creates the problem, it is the non-traumatic, that is the occupational disease which are being affected because of these chemicals in many area. तो मेरा ख्याल से हमें थोड़ा इस पर सोचना चाहिए. It is not the information is not available. There are the plenty informations available in the Googles or Meta or in the our websites and everywhere. एक चीज मैंने आप लोगों को से शेयर करूंगा, which are not very important in the other industry, but these are important in the chemical industry. The difference between the safety and the security. It is very often these are interchangeable saying like that. हमारा पास सेफ्टी इक्विपमेंट है, सीसीटीवी लगा हुआ है. सीसीटीवी इज नॉट द सेफ्टी आइटम, इट इज ए सिक्योरिटी आइटम. यू नो ऑल दिस थिंग्स, बट हम लोग कहने का समय कह देते हैं कि सिक्योरिटी के लिए है. दोज हु आर द गार्ड इन द दिस वन, द आवर गेट, those these trucks are coming inside or tankers are coming inside the things, we are seeing the documents. These are all basically the security item. Safety item is basically given in the design. और मैं इसमें थोड़ा बहुत पुराना, मैं भी उसी का एक करेंगे. I will also take the benefit of the informations available and I will discuss on those things. मैंने सोचा कि एक दो पॉइंट थोड़ा बोलना चाहिए, इसलिए इसको बोला. एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि परहैप्स मिस्टर राव और somebody was discussing or no, Mr. Shahnawaz was telling the situation of the importance of those. Let me give my experience. 2000, in the year 2000, I was posted at Paradip as a port inspector. Myself and Pandaji फैक्ट्री इंस्पेक्टर, हम दोनों उधर थे. ऑसवाल केमिकल्स का लीकेज हो गया, 30,000 का अमोनिया लीकेज लिक्विड स्टेज में, और रास्ता एक ही है पारादीप से कटक जाने का. इफ एनीबडी इज फ्रॉम द उड़ीसा यू विल अंडरस्टैंड दैट. बोलिए, कुछ बोलेंगे क्या? हाँ, एक ही रास्ता है. हाँ, उस समय एक ही रास्ता हुआ करता था 2000 में. मैं क्यों शेयर कर रहा हूं? आप हम लोगों को, मैंने बहुत कुछ सीखा है उस इंसिडेंट से, और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं. एक ही रास्ता है, एक साइड में ऑसवाल, ऑपोजिट साइड में पारादीप फॉस्फेट, और दोनों का पास काफी स्टोरेज है. रास्ता एक ही है. लीकेज होने से उसमें से लिक्विड स्टेज से वेपर होके ये जाके वहां स्कूल है बेथानी कॉन्वेंट. आई वॉज पोस्टेड देयर, माई सन वॉज ऑल्सो स्टडिंग एट दैट टाइम. बेथानी कॉन्वेंट, और जहां उसको थोड़ा या पेड़ एंड ऑल दिस एनवायरमेंट, कूल एनवायरमेंट मिल रहे हैं, वही जाके वो बैठ जा रहा है. तो हाँ, तो रिजल्ट इज दिस. गांव वाले विलेजर्स आर वेरी वरीड because their childs are coughing अपना घर में. प्रॉब्लम तो उस जगह में स्कूल में जाके लेके वो वापस आ रहा है. तो इट वाज फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड, इट वाज फ्यूरियस. दे केम टू द गेट, would like to see and told that we like to see the where is the lake, और कैसे क्या हो रहा है, क्यों हमारा बच्चे का ये प्रॉब्लम. मैं ये बोल रहा हूं कि देयर आर द CSR. इट इज नॉट दैट सेंडिंग द आवर मेडिकल टीम टू द विलेज, आवर ड्यूटी इज ओवर.
CSR means these villagers has to be trained. उनको बोलना चाहिए था कि ऐसा लीकेज होता है और ऐसा लीकेज होने से क्या करना है. Those information has to be given to the villagers. और एक आदमी उस समय हमारा, मैं और पांडा जी तो एकदम बिल्कुल we are just praying to the God because they are searching us. मुझे और पंडा जी को, मेरा गलती ये था, I was not the sole responsible of that plant, but I was responsible because there was a ship which was unloading the ammonia at that time to the Oswal. अभी चेयरमैन बोल रहा है कि आप उसको बंद कर दो. अब बंद करने का तो पावर मेरे पास है नहीं, चेयरमैन का पास है. चेयरमैन मुझे बोल रहा है कि आप बंद करो, मैं चेयरमैन साहब को बोल रहा हूं सर आप बंद कर दीजिए. तो ऐसे सिलसिला चल रहे हैं. गांव वाले का पास खबर गया कि वो आदमी ने और अमोनिया डाल रहा है, तो वो दे आर ऑल्सो सर्चिंग फॉर मी. तो मेरा गलती, मैं क्यों ये बोल रहा हूं, एनफोर्समेंट का जगह में आदमी का कुछ रिस्ट्रिक्ट ये रहते हैं. वी आर समवेयर वी आर हेल्पलेस. और उस समय हमें ये चाहिए कि इंफॉर्मेशन शुड बी पर्कुलेटेड टू द वर्क, टू द विलेजर्स, टू द पीपल, क्योंकि केमिकल रॉ मटेरियल कैरीज द हैजार्ड्स, बाहर ले जाते हैं. इट इज नॉन ट्रॉमेटिक और ट्रॉमा क्रिएट कर रहे हैं अभी, क्योंकि मेजर एक्सीडेंट हो गया. तो इसमें मैंने आप लोगों से उस समय मिस्टर शर्मा, आई थिंक ही वाज द ED, उन्होंने गेट पे आ गए और एक जीप का ऊपर खड़ा होकर बोलने लग गए कि आप लोग छोड़ दीजिए कि अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि अंदर जाने से तो दे आर पुटिंग द ब्लैंकेट, वाटर ब्लैंकेट दे के दे रहे हैं. और सबको मालूम है, हम लोग जो ब्लैंकेट को भरोसा कर रहे हैं, हमें मालूम है वाटर ब्लैंकेट विल नॉट वर्क बिकॉज इट विल फॉर्म द NH4OH और इमीडिएटली इट विल NH3 विल कम आउट. तो एमोनिया बाहर जाएगा, लेकिन कुछ काम के लिए, कुछ टाइम के लिए हम लोग ये टाइम मांगने का कोशिश कर रहा था. मैं ये स्टोरी क्यों नहीं बताया, क्योंकि दैट पर्सन ED ही स्टूड ऑन ए ओपन जीप और बोलने लग गए ये ढूंढने का जरूरत नहीं क्यों कैसे क्या हो रहा है. ये याद में रखिए कि वेदर शर्मा जी, मिस्टर दिलीप शर्मा ऐसा कुछ नाम था, दिलीप जी जिंदा है कि नहीं. जब तक मैं जिंदा हूं आप लोगों भी जिंदा रहेंगे, क्योंकि मैं पास में खड़ा हूं. तो प्लीज डोंट डिस्टर्ब अस. तो इट वर्क्स लाइक ए मैजिक, द पीपल गो आउट. थैंक गॉड हम लोगों ने बच गया, मैं और पांडा जी. मैं इसलिए बोल रहा हूं, द रूल्स आर देयर. CSR is this. There are lot of things given into the rule, but the application area में हमें अपना दर्द से देखना पड़ेगा. भाई, before going to the next time into the plant, please take a look of the वो जो बच्चे का फिल्म था ना, आमिर खान का, तारे जमीन पर, थोड़ा देख लीजिए. हम लोगों ने बहुत सारे डिस्कस किया है अबाउट द केयर. ही हैज गिवन द डेफिनेशन ऑफ द केयर. हमको हर टाइम पर बोलना पड़ता है कि आई एम देयर, डोंट वरी. हमारा जितना भी खराब आदमी वर्कर हो, हम लोगों को बोलना पड़ता है कि भाई डोंट वरी, आपको जो ये होगा आप समझने का कोशिश कीजिए. और हम लोगों को बोलना पड़ रहा है. ये बोलना कभी आसान है, लेकिन अल्टीमेटली इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर साहब को ये करना पड़ता है. मैं किस लिए ये बोल रहा हूं कि ट्रॉमेटिक और नॉन ट्रॉमेटिक एरिया में काफी अंतर होता है. जहां धीरे धीरे आपका एनिमी अंदर जा रहा है, वो काफी डिफिकल्ट सिचुएशन होता है. और ऐसा हम लोगों ने देखा कि देयर इज वन सर्वे वी हैव डन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्बेस्टोसिस का ऊपर, जिसमें देखा गया कि देयर इज ए पर्सन
the weight 42 years age और weight है 21 kg। तो उनको हम लोगों ने वो ट्रीटमेंट का कोई ये नहीं है। ये सभी चीज मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हमारा पास वापस आने का रास्ता नहीं रहते केमिकल इंडस्ट्री में। केमिकल इंडस्ट्री में वी हैव टू मेक द पीपल लर्न अबाउट देयर ड्यूटीज। इमरजेंसी प्लान दूसरे जगह में एक टाइप का होता है, केमिकल प्लांट में आपको everybody cannot leave our control room. Somebody has to stay in the control room. कौन रहेगा, कैसे रहेगा, these are to be determined. कोई भी मॉक ड्रिल में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस मैंने जब जाता हूं तो मैं देखता हूं कि मॉक ड्रिल में कभी लिखा नहीं होता कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर व्हिच द डिविएशन विल बी कैलकुलेटेड। ओनली मॉक ड्रिल दिया गया है इमरजेंसी प्लान में। What does it mean? कुछ नहीं होता। आपको तो देना पड़ेगा क्या आपको चाहिए और क्या आपने मिल रहा है। If it is not there, then what is to be done? My friend, मैंने आज केमिकल इंडस्ट्री में इंडस्ट्री क्या है उसका, इसको कैसे चेंज किया जाता है ऊपर से, हाँ लेफ्ट राइट, हाँ। मैं आप लोगों से एक डेफिनेशन शेयर कर रहा हूं। इसमें अगेन इफ यू गो टू द गूगल और मेटा मिल जाएगा, लेकिन कुछ डिस्कशन के लिए मैंने इसको ये ले रहा हूं, सहारा ले रहा हूं। सिस्टमेटिक एक्टिविटी, इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट में, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में कहा गया है इंडस्ट्री क्या है, देयर इज अ सिस्टमेटिक एक्टिविटी। किसका सिस्टमेटिक एक्टिविटी? एम्प्लॉयर एंड द वर्कमैन। दोज वर्कमैन एनी टाइप ऑफ एजेंसी, टेम्पोररी, परमानेंट, कॉन्ट्रैक्टर, एवरी whatever may be, things are there that these 2%, these are the two area, they by that they will do the systematic activity, designed activity, planned activity, our machinery planning, workman planning, this everything, raw material planning, everything systematic activity. और in that systematic activity designs are being maintained. और डिजाइन में आपको दिया जाता है क्या रहना चाहिए क्या नहीं रहना चाहिए और हाउ दे आर टू बी मेंटेन्ड। These are the systematic activity. Now I will come back here. हमारा इंडस्ट्री का इंडस्ट्रियल एक्टिविटी MSIC रूल्स में क्या कहता है? MSIC रूल इज टेलिंग दैट द ऑपरेशन एंड प्रोसेस सिस्टमेटिक एक्टिविटी, ऑपरेशन एंड प्रोसेस कैरिड आउट इन शेड्यूल 4 में जो ऑपरेशन दिया गया है वो ऑपरेशन इन्वॉल्व इन वन और मोर हैजार्डस केमिकल्स। हमारा रूल में दिया गया है हैजार्डस केमिकल क्या है। तो हैजार्डस केमिकल्स इंक्लूडेड इन द ऑन साइट स्टोरेज और ऑन साइट ट्रांसफर। कितना बढ़िया डेफिनेशन है। इसमें ऑन साइट स्टोरेज दिया गया है, आइसोलेटेड स्टोरेज दिया गया है। मेनी ऑफ द पीपल आर नॉट अवेयर, उसको बताया नहीं जाता है कि ऑन साइट स्टोरेज और इस दोनों में अंतर क्या है। आइसोलेटेड स्टोरेज ऑन साइट स्टोरेज प्रोसेस का पार्ट है, लेकिन आइसोलेटेड स्टोरेज इज ए डिफरेंट एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। तो ये जो इसका जो इसमें जो हैजार्डस केमिकल तो रह गया है प्रोसेस में, और प्रोसेस में हैजार्डस केमिकल जो रहते हैं वो डिफरेंट जगह में डिफरेंट सिचुएशन में उसका इमीडिएट फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। देखिए इसमें मैंने जो बोल रहे थे इंटरमीडिएट फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, बाई प्रोडक्ट्स, दीज आर ऑल द डेफिनेशन ऑफ द मैन्युफैक्चर स्टोरेज इंपोर्ट ऑफ हैजार्डस केमिकल्स रूल्स।
हमारे इंडस्ट्री में ये इंफॉर्मेशन है जो चाहिए। दोज हु आर हैंडलिंग द थिंग, उनको बोलना चाहिए कि सल्फर एरिया में काम करना है तो हाथ धो के खाना खाना है। सो इट इज नॉट ओनली मैंडेटरी बट इट इज ए रिक्वायर्ड आइटम फॉर देयर सेफ्टी। क्योंकि इंटरमीडिएट, फिनिश प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट, वेस्ट और एफ्लुएंट्स दे आर ऑफ, एवरीथिंग इज कैरिंग दोज मटेरियल। मैंने आप लोग आज इसमें सम ऑफ आवर स्पीकर वाज डिस्कसिंग अबाउट द वेस्ट का बारे में, कि हम लोगों ने साहब ने बोल रहे थे, शायद पाठक साहब, वी हैव थ्रोन इट आइदर इट विल, और किसी ने बोल रहे थे, मुझे याद नहीं है, बट द थिंग इज दैट हमने आइदर इट विल गो टू द कूड़ादान में जाएगा, नहीं तो बाहर आगे पीछे गिरेगा। अब थोड़ा सा आई एम नॉट कंपेयरिंग, कभी देखिएगा कि हाउ द वेस्ट मैनेजमेंट इज डन इन द यूरोपियन कंट्री। वहां किसी को बोलने का जरूरत नहीं पड़ता है। They are going to those waste area. Even my son is going. जाके वहां फेंकते हैं। ईच एंड जो पेपर में फोल्ड करके लेके गया है, वो बॉटल का जो ये है उसमें गिराते नहीं, पेपर लेके दूसरे कूड़ादान में फेंकते हैं। एंड ही इज डूइंग बाय हिमसेल्फ, और कोई नहीं है इसको ये करने के लिए। हमारा यहाँ नहीं होता, क्योंकि हमारा यहाँ ये इसके लिए तारे जमीन पे ये फिल्म को आई केयर फॉर दैट, इसका बारे में कूड़ादान का कोई केयर किसी ने दिखाया नहीं। भाई दोज हु आर इन द मैनेजमेंट, एनफोर्समेंट का कुछ करना नहीं है। इट इज बेसिकली वी हैव टू टेल दोज पीपल, हमारा वर्कर्स, टू मेक देम अंडरस्टैंड। ये अल्टीमेटली दिस विल लीड टू दोज ट्रॉमेटिक एक्सपोजर और नॉन ट्रॉमेटिक इफेक्ट उसमें से आने वाले हैं। और ये हम लोगों को जो कभी, मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, एनीबडी फ्रॉम एनी इंडस्ट्री, थोड़ा सीने पे हाथ रख के बताइए क्या एनुअल मेडिकल टेस्ट आप करते हैं आपका वर्कर के लिए हैजार्डस एरिया में? होता है? क्या करते हैं? क्या करते हैं? Do you only taking the blood sample, blood sugar and pressure and all this, or you go for the specific required testing for the asbestosis, for the silicosis? ऐसा टेस्टिंग होगा शायद किसी जगह में, I may not know that, but सभी का तो लिमिटेशन है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जहां मैंने देखा है, एक ऐसा चालू दिखाते हैं कि हम लोगों ने टेस्टिंग करते हैं, एक्सरे कराते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस मैंने रिकॉर्ड मुझे मिला नहीं कि जो कैंटीन बॉयज है उनका हाथ का नाखून चेक होता है, लेकिन रिकॉर्ड तो मुझे रिकॉर्ड नहीं मिला है। मैंने जहां गया है वो उनका होता है, लेकिन क्वेश्चन ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। कहीं लिखा नहीं है, कोई कानून में लिखा नहीं है कि कितना फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। हाँ, 1 ईयर में एक बार, लेकिन जो दोज हु आर द फूड हैंडलर, उनको तो जब भी जरूरत पड़े, मैनेजर ने देखा कि उसको थोड़ा तबीयत बिगड़ रहा है, तो ही हैज टू बी गॉन फॉर द टेस्टिंग। और ये जो है, ये कोई एनफोर्समेंट का नहीं है। 1 साल में एक बार एनफोर्समेंट है, लेकिन वो छोड़ के भी ये जो इफेक्टिव एरिया, मेरा रिक्वेस्ट है कि इस पर शायद हम लोगों को सोचने का ये आ गया, क्योंकि कौन कूड़ादान में पेपर फेंकना है ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज नॉट द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने तो 4 बैठा के गया है बॉटल ये सब फेंकने के, ग्रीन बॉटल, व्हाइट बॉटल, सब अलग अलग है। तो
लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा ये लेना पड़ेगा। तो hazard this carried by the chemical industry through its intermediate finished product, byproducts, waste and effluents. And effluents treatment plant को भी we have to be careful on this. देखा जाता है तो ये मैंने अपना कहीं किताब में नहीं है, मुझे लगा कि थोड़ा शेयर कर लेते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज तो हमें मालूम है, थ्रू डाउ इंडेक्स हम सब कुछ एक इंडस्ट्री का सिचुएशन देख सकते हैं, दूसरे इंडस्ट्री से उसको कंपेयर कर सकते हैं। बट द क्वेश्चन कम्स व्हेन देयर आर 2-3 केमिकल्स स्टोर्ड इन वन प्लांट, और उन दोनों का अंदर में which one is given the priority और किसको कितना फ्रीक्वेंसी में देखना है, ये भी एक एरिया है जो हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हाउ इंपॉर्टेंस इज फॉर द डस्ट सल्फर और सल्फर डाइऑक्साइड, इन दोनों में कहाँ कितना फ्रीक्वेंसी में इंपॉर्टेंस देना है। जो बल्क रहते हैं उसका जो डस्ट होता है वो कितना इफेक्ट करता है, लाइक दिस। तो टॉक्सिसिटी, रिएक्टिविटी, एक्सप्लोसिव, इनकम्पेटेबिलिटी, ये सभी का, लेकिन जो 4-5 एरिया में हमें देखना, जो हमें थोड़ा ध्यान देना जरूरी होता है, दैट इज द चेंज इन प्रेशर जहां होता है, चेंज इन टेम्परेचर जहां होता है, चेंज इन लेवल, सैंपलिंग, कॉन्फाइंड स्पेस। These areas are the vulnerable area in a chemical plant, in the process area. Process में we are the normally we take care of these deviations. ये hazards जहां जहां प्रोसेस में ये चांसेस चेंज ऑफ प्रेशर जहां होगा वहां आपको मोर, ये जो हैजॉब हम लोग करते हैं उसमें से हम लोग जो करते हैं उसमें मोर लेस ये सभी का चांसेस ये सभी में है। तो हमें इस पर इसीलिए उसको ध्यान देना जरूरी होता है। In the same plant, there may be a chemical of the stored in a mist type, vapor, gas, smoke, dust in a different form. Now, if the storage in your area is your highly toxic one material, but in the solid stage, in the solid form, and the chemical of chlorine is been stored in one place, or LPG, the situation are different, but high toxicity, until and unless we have to understand it, how it enters into the body. So in that way we have to understand it, that which one in my plant, which one is most problematic और किसको कितना वेटेज देना होता है। और उसके लिए डाउ इंडेक्स को पकड़ के नहीं कर सकते, बट डाउ इंडेक्स कैन बी योर गाइडलाइन। डाउ इंडेक्स के हिसाब से आप वेटेज अपना छोटा छोटा एरिया में दे सकते हैं और अपना मोड ऑफ जो इंपॉर्टेंस इसको डिसाइड कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई दीज आर द physical state and chemicals in the industries. आपको मालूम होगा कि these are the areas in the chemicals जहां inhalation, absorption, ingestion यही है। और ये केमिकल का जो पहले स्लाइड में जो मैंने दिखाया इसका ऊपर डिपेंडेंट है। Whether in our plant itself क्या कैसा है, ये तीनों का हमारा एक्सपोजर वर्कमेंट का कैसे हो सकता है, दिस इज टू बी डिसाइडेड बाय द
not only the safety officers, it is to be done by the line management. उनको देखना पड़ता है कि हम कैसे क्या कर सकते हैं, कितना इफेक्टिव होता है. मैंने कुछ एरिया में देखा कि ये हमारा फार्नेस, जो इंडक्शन फार्नेस 2 है उसको 3 बनाया गया है. जहां 2 को 3 किया गया है उसमें हम लोग उसको WA करते हैं कि यहाँ एक है, यहाँ एक है और एक यहाँ ढाला गया है. तो इन दोनों का बीच में जो अभी पहले था, इन दोनों का बीच में जो गैप है उस गैप कम ज्यादा हो जाता है. दे तो दिया गया है, बट कैन वी डाइजेस्ट इट? तो इसके लिए स्टडी होता है, हुआ है क्या? हुआ होगा तो व्हाट इज द रिकमेंडेशंस? ये इट इज नॉट ओनली द आवर बीइंग ए एनफोर्समेंट ऑफिसर हिसाब से मुझे भी वहां ऐसा कोई आता तो ये मुझसे ज्यादा उनका मैटर होता है कि हाउ कैन वी पुट इट एंड व्हाट आर द गैप्स हैज टू बी मेंटेन्ड. तो हमारा एवरी केमिकल प्लांट, दोज हु आर केमिकल हैजार्ड के लिए जो जो चेंजेस ये सब और एब्जॉर्प्शन जो मैंने बताया उस हिसाब से ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू, फ्लैश पॉइंट, ऑटो इग्निशन टेम्परेचर, ये सब इसमें मैंने दिया है. रेगुलेशन का किताब में थ्रेशोल्ड क्वांटिटी है. थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू is the guideline for us, but threshold quantity given in the manufacture, storage, import of hazardous chemicals rules, ये दूसरे कंट्री का इसमें नहीं है, हमारा देश में है. और threshold quantity is the guideline for us that कौन सा केमिकल्स को कितना वेटेज देना होता है. और वो शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 में आपको केमिकल का आपका ये देखे दिया गया है. व्हाट इज द कैपेसिटी यू कैन मैक्सिमम बीआर फॉर इट. आपका स्टोरेज के लिए, आइसोलेटेड स्टोरेज के लिए, प्लांट इसके लिए सब अलग अलग है. एज बिकॉज इट इज ए बिग एरिया तो दिखाने से अच्छा होता था, बट डिफिकल्ट मैंने इतना दिखाने में, इसीलिए मैंने इसको चुना है. ए फ्लैश पॉइंट is the important criteria. Those who are in the process, they understand it, but there are the very few workers, they understand about the flash point of the things. और मैंने स्टोरेज एरिया में जाके बैठ के खाना खाने भी देखा. those workers, those who are working there, तो वो वहाँ बैठ के खाना भी खा रहा है, दोनों मियाँ बीवी मिलके बैठ के खाना खा रहे. तो सवाल ये है कि ये सब का जो बैरिकेडिंग, जो सिस्टम तैयार होना जरूरी है, वो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता. क्योंकि वंस इट इज द हैपनिंग ऑफ द वंस, वो जो 99.99 का कोई वैल्यू नहीं है, इफ 0.01 का इफेक्टिव हो जाता है. तो यहाँ भी ऐसा ही है कि एक दिन का घटना, दैट कंपनी लॉस्ट हिज ऑल क्रेडेंशियल्स. तो इसीलिए ये सब में हम लोगों का ज्यादा इम्पोर्टेंस देना पड़ता है. तो इसका डेफिनेशन मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ. आई थिंक यू ऑल नो दैट वन. दिस LFL, UFL, किसी जगह में LEL, UEL ये सब रहते हैं. एक्सप्लोसिव और फ्लेमेबिलिटी का ऊपर है. वंस अगेन मेरा एक रिक्वेस्ट है कि हम लोग थोड़ा ये रखेंगे कि हम लोग सिक्योरिटी को ट्रेनिंग दिया गया है फायर हैंडलिंग के लिए. ये कहे कि हम लोगों का शांति से बैठना नहीं चाहिए. वी मस्ट सी दैट वेदर फायर इज द लाइक द एक्सीडेंट, 1 hour, first hour is the most important for the life. Similarly, first 5 minutes is the important for the
फायर, तो ये हम सबको मालूम है, लेकिन इसके लिए वो हमें ओनली द सिक्योरिटी काम करने से साथ साथ फायर का काम भी जोड़ देने से और होगा तो इट नीड्स द रेगुलर ट्रेनिंग एंड ऑल दिस, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू द रेगुलर दिस टाइप ऑफ वर्क. ये हमारा पास पीपी एंड ऑल दिस आर एवरी ट्रेडिशनल सेफ्टी के लिए ये होता है जो ट्रॉमेटिक होता है. नॉन ट्रॉमेटिक में दीज आर द हैविंग द पीपी का मतलब ओनली हेलमेट्स नहीं है, जो रेगुलर जो गैस प्रोटेक्टिंग जो मास्क होता है सभी का प्रयोग होता है. तो मैंने एक चीज आप लोगों को दिखा देंगे और फिर आई विल वाइंड अप. कोई किसी का कुछ पूछना है तो पूछिएगा. मैं इट इज बेसिकली द कंट्रोल एंड ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड हैजार्ड्स. हमारा पास रिकॉग्नाइज्ड हैजार्ड्स जितना है वही उसी को कंट्रोल करने के लिए हम लोग डिजाइन में थोड़ा ध्यान देकर रखते हैं. देयर आर मेनी एरिया इन द केमिकल प्लांट दोज हु आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एट ऑल, और उसके लिए हम लोगों को फिर अपना दिमाग लगा के छानबीन करना पड़ता है. तो दैट इज द बेसिकली दैट इज द पार्ट ऑफ द उसको एक्सेप्टेड लिस्ट के ले आने के लिए वही सेफ्टी होता है. और अनदर थिंग एवरीवेयर आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द हैजार्ड. मेरा ख्याल से हैजार्ड इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स. इसको अपना जो प्रॉपर्टी है इसको निकाल के कोई केमिकल को हम लोग बना नहीं सकते. वी डोंट नीड द एलपीजी व्हिच डज नॉट हैव द फ्लेमेबिलिटी, बट दैट्स द थिंग. वो केमिकल का इसमें इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइसोलेट दिस टू. हैजार्ड इज द पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, इसीलिए इट इज द क्वालिटी. हैजार्ड एंड क्वालिटी आर द ट्विन. एक का साथ दूसरे जुड़ा हुआ होता है, तो एक को छोड़ देंगे तो दूसरे को आप नहीं रख सकते हैं. तो दिस इज द थिंग. थैंक यू वेरी मच. इफ एनीबडी वांट्स टू आस्क मी एनीथिंग तो बोल सकते हैं, अदरवाइज थैंक यू सर.